Hello everyone. My name is Rishabh Jain, and I've written four civil services prelims, out of which I was able to clear two civil services prelims examination in 2020 and 2021. And I was also not able to clear two civil services prelims, which was in 2019 and 20. So my goal would be that I'm planning to make these small videos where I show that how to approach questions, how to use certain common sense and logic to solve questions, and what can be a good strategy overall to solve the prelims paper. So this time we are doing Civil Services Prelims 2021 paper. So let's move ahead. So in this question number one. So my general experience has been that whenever there are multiple statement questions, these kind of questions, we just have to find one statement which can help us reach to the answer. So even if there are seven statements, even if there are eight statements, we need not be scared, and we just need to find one statement which will take us to the answer. Now my rule has been that I read the statements from bottom to top rather than top to bottom. I will tell in next few questions that what is the logic for this rule, but for now we will apply that. So let's read statement 3. Statement 3 says that the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Now, this statement seems logical, as well as if you have read basic economics, you will know that RBI Act contains the power of the governor. So, statement 3 seems logical. Now, statement 2. Certain provisions in the Constitution of India gives the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Now, UPSC these days is designing question where they are putting explicitly that what is the provision as per the Constitution of India. Now, this provision is true that central government has the right to issue directions to the RBI in public interest, but this is contained in section 7 of RBI Act, and this is not part of the Constitution of India. So if you know this, it is well and good, but even if you do not know it, it is very highly unlikely that such a specific provision would be there in the Constitution of India. So this statement seems false to me by all the logic. So second statement is false. Now, if we look at the ABCD options, there is only one option in which there is no statement 2, which is option C. That is our answer. But we will still read statement 1, which is governor of the RBI is appointed by the central government. This is a general statement and this is true. RBI का जो governor होगा that will be ultimately appointed by central government. So the answer is C, and this is an easy question. Any serious aspirant, if he or she is doing this question wrong, it will be highly unlikely he or she will will be able to cross that 100 marks cutoff limit. So this question must be right for any serious aspirant. So this was question 1. Let's move to question number 2. With reference to the casual workers. So as we're able to see, UPSC is now giving questions which have multiple statements. So we just need to, and again, if we see the options here, we just need to find one statement which is wrong. So let's read the question. With reference to casual workers employed in India, consider the following statements. Let's read from bottom to top. The government can buy a notification. So some points we need to make sure while we are reading the statements. The government can, we need to highlight this, can buy a notification, specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank accounts. Now if we see only, ऐसा बताया जाता है कि जब भी ओनली आ जाए तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, बट वी नीड टू बी लॉजिकल. सी दे आर सेइंग दैट स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट्स. अब यहाँ पे ये लिखा है कि एन एस्टैब्लिशमेंट, तो कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री हो सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह का कोई नोटिफिकेशन दे. ज़रूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री और हर एस्टैब्लिशमेंट के लिए सरकार ये काम करेगा, बट फॉर सम स्पेसिफिक establishment or industry, the government can do this.
कि सिर्फ ऐसा ही हो, तो दिस स्टेटमेंट सीम्स लॉजिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फायर क्रैकर इंडस्ट्री है, यहाँ पे गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर कि कोई भी जो यहाँ पे काम कर रहा है वो 18+ ही हो, तो वो ये कहेंगे कि जो सैलरी है वो आप अकाउंट में दो ताकि हम देख पाएँ इस इंसान की डिटेल. वेयर एज अगर ये प्रोविज़न नहीं होगा तो आप 18 से जो बिलो के बच्चे हैं आप उनको भी यहाँ पे दे के कैश में आप उनको कर सकते हैं. तो दिस सीम्स लॉजिकल. स्टेटमेंट 3 सीम्स लॉजिकल. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. Now, we have read DPSPs, okay, and even if we have read basic, हमारी जो स्पेक्ट्रम में हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, हमेशा से वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट जितना जो जो भी वर्किंग आवर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 आवर्स हैं तो पहली बात तो ये रेगुलर वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, और अगर इससे ऊपर कुछ भी हो तो उसके जो पेमेंट है वो दिया जाता है. तो ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ये एक बहुत ही बेसिक सा इशू रहा है. तो हाई चांसेस आर दैट दिस विल बी ट्रू. इसका फॉल्स होने का लॉजिक कोई दिख नहीं रहा. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल. अब यहाँ पे हम क्या हाईलाइट करेंगे? ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज. Now in this option there was certain kind of debate, but I will be discussing here what was my approach while I was giving the examination. So यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आती हैं कि ऑल कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, और EPFO. अब मुझे यहाँ पे प्रोविज़न याद था, मेरे को कुछ इस तरह का वेगली याद आ रहा था कि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में 10 याद आ रहा था, वो उससे ज़्यादा होना चाहिए, और कुछ सैलरी भी थी कि अगर इतने से ज़्यादा सैलरी है तभी वो मिलेगा. तो ये अगर प्रोविज़न नहीं भी याद आपको तब आप कैसे करेंगे? तो आप इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि अगर कोई नॉर्मल आपके घर के बाहर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है, ठीक है, एंड वहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 छोड़िए, आप वहाँ पे आप ये मानिए कि वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो अब वो जो लेबर है उसको, ऐसे सभी कैजुअल लेबर्स को, हमारे यहाँ मोस्टली इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज़ इनफॉर्मल इन नेचर, तो इतने सारे इनफॉर्मल वर्कर्स को EPFO के फोल्ड में लाना ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है. मतलब ये हम उसकी स्केल को सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा टास्क है. तो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट स्टेटमेंट 1 विल बी ट्रू. इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सट्रीम इन नेचर. अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी सोच के देखेंगे, दिस इज़ वेरी एक्सट्रीम कि आप उसको EPFO में लेके आएंगे. वेयर एज जो स्टेटमेंट 2 है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स, गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है. गवर्नमेंट बोल देगी कि आप 10 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी. ओवर टाइम पेमेंट आपको देनी होगी. पर यहाँ पे EPFO गवर्नमेंट की एक बॉडी है. अगर वर्कर्स वहाँ पे आप एंटाइटलमेंट दे रहे हैं. दूसरा आई थिंक कीवर्ड एक ये भी देखना चाहिए, एंटाइटलमेंट. एंटाइटलमेंट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल टर्म. अगर कोई एंटाइटल्ड है किसी चीज़ के लिए तो आपको वो सर्विस देनी पड़ेगी. तो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग and statement 2 and 3 is right. So the answer was B. Some people went for D also, but it was not the correct answer. In the UPSC answer key, the answer was B. Let's move to question number 3. Which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? See, these kind of questions where they are talking about recession, they are talking about inflation. Let's read the question first. Cut in tax rates accompanied by increase in interest rate, increase in expenditure on public projects, increase in tax rates accompanied by reduction of interest rate, reduction of expenditure on public projects. So firstly, I will not be discussing these kind of conceptual questions, because until and unless you are not aware about the basic economic fundamental concepts, you will not be able to solve this question, and that is not my goal for this video. So my advice for these kind of questions is that we need to be very conceptually clear on certain fundamental topics, and this is one of that kind of questions where there'll be no logic as such or no trick which will be applying on this question. Either you know the concept and you'll be able to reach to the question, or you will not be able to solve this question. And this question is a very easy question if you know the concept, and this must be true. अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट को मिस कर रहे हैं. एंड वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4. Other things
remaining unchanged, market demand for a good might increase if, and they are then saying that which of the following are correct. So the thing to be noted is that other things are remaining unchanged. जो हमारे दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं कि अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं करना. वो कह रहे हैं कि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं. मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, तो दे आर टॉकिंग अबाउट मार्केट डिमांड और वो माइट कह रहे हैं. ठीक है, तो इसमें नीचे से ऊपर पढ़ते हैं. उसका जो प्राइस है इट फॉल्स. तो अगर किसी भी गुड का जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, है ना. तो दिस सीम्स लॉजिकल, 4 सीम्स लॉजिकल. डी एलिमिनेट कर देते हैं, वहाँ पे 4 नहीं है. द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. अब देखिए, अगर आपको इन्फीरियर गुड नहीं पता तो आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर सकते. तो इन्फीरियर गुड एक कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी यहाँ पे चेक कर रहा है. इस बारे में हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड क्या होता है. पर अगर किसी को नहीं पता तो हम ऊपर बढ़ जाएंगे, हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे अभी. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. अब देखिए, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट अगेन ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, बट इसको समझना आसान है अगर आपको नहीं भी पता. सब्सटीट्यूट का मतलब है कि अगर कोई एक्स गुड था, ठीक है, और एक्स है और वाई है, एक्स एंड वाई, इफ दीज टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट गुड्स, इनका मतलब ये है कि अगर एक्स नहीं भी होगा तो वाई से काम हो जाएगा, और अगर वाई नहीं भी होगा तो एक्स से काम हो जाएगा. तो प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. ठीक है, अगर एक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और वाई एक्स का सब्सटीट्यूट है, वाई का जो है वो प्राइस बढ़ गया है ना, तो जो एक्स है अब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना. तो बेसिकली यही लॉजिक लगना था यहाँ पे. और सेकंड है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो एक्स हैं और जो वाई हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. अगर एक की डिमांड कम होगी तो दूसरे की भी कम हो जाएगी. प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है और कार है. अब अगर पेट्रोल जो है वो कार का कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की भी जो नॉर्मल ऑटोमोबाइल की डिमांड है वो कम हो जाएगी ना. तो इसी लॉजिक से जो कॉम्प्लीमेंट का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो इसकी डिमांड कम होगी, तो सेकंड नहीं होना चाहिए. तो हम सेकंड को हटाएंगे. अब हम 1 and 4 एंड 1, 3 and 4 में आ चुके हैं, और 1 तो होना ही था क्योंकि प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. तो अगर इसकी आपका प्राइस इंक्रीज, अगर आपका वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो एक्स की जो आपकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको सेम ही चीज़ सस्ते में मिल रही है ना. इसका कंपैरेटिव आपका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया है. तो अब बात आ जाती है ए और सी में. द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. देखिए, अब मैं यहाँ पे मुझे अभी देखना पड़ेगा कि मैं क्या करके आया था, बट मैं इसको गलत करके आया था. बट अभी इसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इन्फीरियर गुड वो होता है, इन्फीरियर गुड वो होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी अभी इनकम जो है वो बहुत कम है, एंड क्योंकि उनकी इनकम जो भी है वो कम है तो दे आर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑफ लो क्वालिटी, और वो हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, डालडा घी इज़ अ इन्फीरियर गुड एंड देसी घी इज़ अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अ इन्फीरियर गुड. तो अगर किसी ग्रुप की इनकम बढ़ जाएगी तो वो लोग डालडा घी कंज्यूम नहीं करेंगे ना, फिर वो देसी घी पे आ जाएंगे. तो बेसिकली द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज. अगर ग्रुप की जो इनकम है वो बढ़ेगी तो जो इन्फीरियर गुड की डिमांड है वो कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि वो लोग प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज. तो इनकम इंक्रीज हो रही है, इन्फीरियर गुड्स जो होंगे जनरली जो उनकी डिमांड है वो कम हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं. तो द आंसर इज ए. मैं इसका एग्जाम में सी करके आया था बिकॉज आई वॉज नॉट कंसेप्चुअली क्लियर ऑन वॉट इज़ एन इन्फीरियर गुड, बट UPSC was essentially checking the concept of whether you know what is an inferior good or not. So अब यहाँ से लर्निंग क्या है? लर्निंग यहाँ से ये है कि
there are certain concepts which need to be clear for a student. What is a substitute good? What is a complement good? What is an inferior good? And ultimately, only then we will be able to reach to the answer. Question number 4. With reference to the urban cooperative banks in India, consider the following statements. So अभी नीचे से ऊपर ही पढ़ेंगे हम. They were brought under the purview of the Banking Regulation Act through an amendment in 1966. देखिए फैक्चुअल बात है, या तो ये पता है या तो ये नहीं पता है. और ये अगर हम कोई भी बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे जहाँ पे हम पूरा बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे आपको हर जगह मिलेगी. अब ये एग्ज़ाम में आप क्लिक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो डिपेंड करेगा. पर अगेन यहाँ पे ये जो ईयर्स हैं ये भी फ्लिप नहीं हैं, ये भी सेम ही थे. तो ये स्टेटमेंट ठीक है. ये चीज़ आपको फैक्चुअल मेमोरी से ही रिकॉल करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था. सेकेंड थिंग इज़ दैट दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो अब कैन लिखा हुआ है. अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप बेसिक सी बात तो देख ही पा रहे होंगे कि अर्बन में है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अर्बन है, रूरल नहीं है. तो शेयर्स वगैरह और प्रेफरेंस शेयर ये तो कर ही रहे होंगे. तो स्टेटमेंट 2 भी ठीक ही लग रही है. नाउ दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि इसमें रिसेंट अमेंडमेंट आया था जो कि इन्होंने, अब ये जो सुपरविजन है वो आरबीआई के पास चला गया, आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है. बट दिस लोकल बोर्ड थिंग वाज रॉन्ग और स्टेट गवर्नमेंट से भी हट गया था इसका. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं नाउ दे आर अंडर सेंट्रल कमांड्स. सो द आंसर इज बी. इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. सो ये कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा जब भी हम कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉन्ड यील्ड और व्हाट आर इन्वर्टेड कर्व्स एंड ऑल दैट. सो दे बिकम इम्पॉर्टेंट टॉपिक. पर ये लोग कुछ और पूछ रहे हैं. अभी हमें एकदम से घबरा नहीं जाना एग्जाम में कि बॉन्ड यील्ड मेरे को तो याद नहीं आ रहा फॉर्मूला है कुछ भी. वी कैन बी लाइक कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड. सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है इन्फ्लुएंस्ड. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये कह रहे हैं कि ये 3 चीज़ें हैं, इनमें से किससे बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस होगा. सी फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो आज की डेट में है, इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स वेब वेयर डिफरेंट थिंग्स आर इंटरलिंक्ड इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे. सो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये कहना कि कोई भी चीज़, मतलब अगर ये कोई एक ए कॉम्पोनेंट है और हमारी ये बॉन्ड यील्ड है, तो अगर ए बी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो दिस इज सो डिफिकल्ट टू से दैट बी इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ए. तो बेसिकली बहुत डिफिकल्ट होगा, कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस आ ही रहा होगा. तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, तो अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं क्या उसका बॉन्ड यील्ड पे कोई फ़र्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा. अगर आपने थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपको पता होगा कि जो भी इन्फ्लेशन मार्केट में चल रहा है उसी से सारा मनी सप्लाई का डिमांड चलता है. ठीक है, और इंटरेस्ट रेट्स आप फर्दर इन्फ्लेशन पे डालते हैं तो थर्ड तो एकदम होना ही होना है. नो वन कैन स्टॉप इट. तो सी और डी में आ गए आप. ठीक है, अब आपको देखना है कि 1 और 2 में क्या है. एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब आप ये देखिए कि यूपीएससी ने एक्शंस लिखा है ना, मतलब यूपीएससी कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है. यूपीएससी इज सेइंग दैट एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने एन नंबर ऑफ एक्शंस ले सकता है ना, उनमें से किसी ना किसी का तो कोई इन्फ्लुएंस आ ही रहा होगा ना बॉन्ड यील्ड पे. तो 2 तो मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता 2 तो वो भी ठीक कर देगा. तो सी तो हटा ही दीजिए आप, है ना. सी इसलिए हटा दीजिए क्योंकि 2 राइट है ही है और 3 मैंने आपको बताया था कि लॉजिक से राइट होगा. तो हम ऑलरेडी 2 और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 2 और 3 दोनों है, तो डी ही आंसर है. बट फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार. एक्शंस ऑफ द यूएस फेड. अब लोग बोल रहे थे इसमें कि भैया यूएस फेड के एक्शन से कैसे इंडियन गवर्नमेंट की यील्ड्स पे पड़ेगा. अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा पहली बात तो. पर अगर आपको नहीं भी पता तो आप सेकंड के बारे में तो पक्का श्योर होंगे और आप थर्ड के बारे में भी श्योर होंगे, है ना. तो आंसर डी ही आएगा क्योंकि 2 और 3 सिर्फ एक ही जगह साथ में है. और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि फर्स्ट वाला क्यों हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि एक आपने टर्म सुना होगा फेड टेपरिंग. ठीक है, तो जब भी कभी यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, वो जब भी कभी कुछ भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करता है तो यहाँ से जो हमारा इंडिया है यहाँ पे जितना भी हमारा
अलग अलग तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. दे फ्लाइट टूवर्ड्स द यूएस मार्केट्स, है ना, और उससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है हमारी जो डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड्स होंगी. तो द आंसर वुड बी डी. एंड अगेन दिस कैन बी सेड एज इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, बट ये नहीं गलत होना चाहिए. ये वही क्वेश्चंस हैं जो सही होने चाहिए. सो 6th क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए. 5th क्वेश्चन, I would say that this is a moderate question. This is not an easy question, but a serious aspirant would go for the right answer. But still ये गलत हो सकता है. इसमें जो statement 1 थी वो ज़रूरी नहीं आपको पता हो. Now let's come to the 7th question. So consider the following statements, and they are asking which of the following can be included in FDI. Okay. FDI में इसमें क्या क्या होता है, तो हम चारों को पढ़ते हैं इसको. Non-resident external deposits, global depository receipts, foreign institutional investments with certain conditions, foreign currency convertible bonds. देखिए अब चारों ही बहुत टेक्निकल सी बातें हैं जो शायद एकदम ऐसे आपको एग्ज़ाम में हिट नहीं करेगा, है ना. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स शायद कर जाए, क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, GDR करके इकोनॉमी के कहीं ना कहीं नोट्स में ये आता है. नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, तो इसका भी श्योर नहीं था मुझे. एग्ज़ाम कंडीशन में सिर्फ थर्ड का सुपर श्योर था कि थर्ड तो पक्का होगा ही होगा, क्योंकि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं तो कहीं ना कहीं ये FDI में आ ही रहा होगा. तो थर्ड जो है वो A और B इन दोनों में आके अब मामला फंसता है. मुझे एग्ज़ाम कंडीशन में ये लगा था कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स वैसे भी लॉजिकल लग नहीं रहा, है ना, तो और थर्ड पक्का लग रहा है. तो सेकेंड और फर्स्ट को देखते हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विथ सर्टेन कंडीशंस. अब मुझे यहाँ पे लगा कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अगर ये FDI होता विथ सर्टेन कंडीशंस तो उसको FDI बोल देते ना. तो मैं उस लॉजिक से इसको गलत कराया था कि ये तो FDI होगा, फिर इसको FII बोलेंगे ही क्यों, है ना. बट अगेन UPSC का कहना है कि ये FDI होता है. अब कैसे होता है, तो इसको अब गलत करने के बाद अगर हमें एक लॉजिक बनाना है तो वो लॉजिक यही बनेगा कि सर्टेन कंडीशंस लिखा है, कि कुछ ना कुछ अगर कंडीशंस ऐड कर दी जाए FII में तो शायद FDI में हो जाता होगा. तो उस लॉजिक से A आ जाएगा, पर हम एग्ज़ाम में B करके आए थे. अब ये क्वेश्चन सर्टेनली कोई इस क्वेश्चन को कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि ये ईजी या मॉडरेट क्वेश्चन है. नो, अगर आपका ठीक हो भी जाता है आप तब भी इस क्वेश्चन को ये नहीं कहेंगे कि ये तो मॉडरेट था, ये तो ठीक हो जाना था. बिकॉज उसका रीज़न ये है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नेवर बी द डिसाइडिंग क्वेश्चन. ये हमेशा सिर्फ 10 से 20% जनता का ही ठीक होगा. ऐसे 70 to 80% जनता विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट द आंसर. तो दिस इज़ नॉट द डिसाइडिंग क्वेश्चन. दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन विच विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू प्रीलिम्स और नॉट. एंड ऐसा क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी होने की बात नहीं है ना. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन गो रॉन्ग. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन. अब ये देखिए, ये लगातार किसी भी करेंसी को बढ़ा देना, किसी करेंसी को डीवैल्यू कर देना, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो UPSC बार बार पूछता आ रहा है, ठीक है. पर अब यहाँ पे एक कीवर्ड था जिसको समझना बहुत ज़रूरी था कि इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज़ दैट इट नेसेसरीली, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था कि इट मस्ट नेसेसरीली डू समथिंग. जो भी ये नीचे आगे ऑप्शन हम बताया, तो लोग इस कीवर्ड को नहीं पकड़ पाए थे और उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ही, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट वो नेसेसरीली की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये समझना, ये अगेन दे आर चेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स. तो हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे. इट इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस. अब लोगों को लगा कि भैया डिवैल्यूएशन हो जाएगा करेंसी का. अगर हमारी करेंसी अभी 70 की है, ठीक है, और वो डीवैल्यू होके फॉर एग्जांपल 100 की हो गई, तो यहाँ से अब जो ट्रेड बैलेंस है, इट मेक्स अप ऑफ 2 थिंग, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब जब आपके 70 से 100 हो गया आपका डिवैल्यूएशन करेंसी का, तो भले ही आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, पर आप एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, तो जो आपका यहाँ वाला सेगमेंट है आप इसमें हैप्पी हो जाओगे. पर जो आपके इम्पोर्ट्स हैं ये महंगे भी तो हो जाएंगे ना. पहले तेल जो था
वो 70 सॉरी रुपीज़ में तो नहीं होता, वो $5 का आ रहा था, ठीक है। वो अभी भी $5 का ही है, पर अब आपको $5 देने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। पहले आपको कितने देने पड़ रहे थे? सिर्फ 350, है ना। तो इधर आपको नुकसान हो रहा है और इधर आपको फ़ायदा हो रहा है। तो नेट ट्रेड बैलेंस आपका इंप्रूव होगा, इसका कोई सिग्निफिकेंट प्रूफ नहीं है कि सिर्फ डिवैल्यूएशन से। तो ये हम नेसेसरीली नहीं बोल सकते, हो सकता है पर नेसेसरीली नहीं है। तो आप ये सी और डी को हटा दो। इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मुझे अभी एकदम से कुछ हिट नहीं हो रहा, बट लेट्स रीड द स्टेटमेंट वन। इम्प्रूव्स द कंपेटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट। ये बात जो मैंने यहाँ पे इधर समझाई थी, मैंने, ये एग्जैक्टली वही बोल रहा है। तो स्टेटमेंट वन तो ठीक है ही है। अब स्टेटमेंट टू को देखते हैं। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यार अगर डीवैल्यूएशन हो रहा है, मैं अभी 70 से 200 पे आ गया हूँ फॉर एग्जांपल, है ना। तो 70 से 200 पे अगर मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे फॉरेन वैल्यू जो है वो इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। कैसे हो जाएगा इंक्रीज डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन वैल्यू? तो बी भी गलत हो जाएगा और आंसर जो है इसका वो ए होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए था, आसान क्वेश्चन है। Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर ही पढ़ेंगे हम, सबसे काम की स्टेटमेंट जनरली नीचे पड़ी होती हैं। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, large donation to political parties and growth of regionalism, investment in unproductive activities and diversion of resources to the purchase of real estate। इन सब में जो सबसे काम की बात है वो डी ही है। और अगर कोई मुझसे बोलेगा कि उसे कुछ और लग रहा है, तो आई वुड जस्ट से दैट थिंक रैशनली, थिंक लॉजिकली एंड थिंक सिंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ब्लैक मनी को इवेड करने के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स भी आई हैं कि आप मनी को सरेंडर कर दो, आप हमें 50% टैक्स दे दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम वो आपका ब्लैक मनी लीगल हो जाएगा, है ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट दी लॉस ऑफ रेवेन्यू, इट इज़ ऑल अबाउट लॉस ऑफ रेवेन्यू। ये ऊपर वाले जो हैं ये कुछ दिख रहे हो लॉजिक, बट कोई आंसर नहीं है इनमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी? अब ये क्वेश्चन शायद 100 बार पूछ लिया होगा यूपीएससी ने, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन आप रट नहीं सकते, ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर ही होना पड़ेगा। तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, दिस कैन बी इन्फ्लेशनरी, बट दे आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इन्फ्लेशनरी। तो चारों ऑप्शन जब तक नहीं पढ़ोगे आपके पास आंसर आ ही नहीं सकता। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, येस, ये भी इन्फ्लेशनरी होगा। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये भी होगा। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस, नाउ दिस क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, बाय दिस दे आर सेइंग दैट दे विल बी प्रिंटिंग मोर मनी। अभी बेसिकली जो ये वाला स्टेटमेंट है कि दे विल बी प्रिंटिंग मोर मनी, जिसको भी इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको ये पता होगा कि इससे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द थिंग जो कि बेसिकली आपका, आज आपके पास 1000 नोट हैं, कल को आप कह दो कि मैं 1 करोड़ नोट ले आऊँगा और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो वो इनकी वैल्यू गिर जाएगी ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो डी ही आंसर है। So far we have discussed 10 questions, and in these 10 questions even this question was an easy question, and this question was also an easy question. So I would make further videos on it where I'll discuss the whole paper, and I'm just learning how to do it in a more productive way. I will try to include more questions in the next video, and in this video we have discussed 10 questions. And actually there were not much questions right now where I was able to inculcate certain logic, but yes, we will be going on ahead from here in the next videos. Thank you.